Sir, first of all, sir, several points. With due respects, of course, I'll address each of the points, sir. But many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary because you've given time for the discussion and issues such as, and I'm a bit disappointed, issues such as, sir, अधिकार के बारे में ही बात करते हुए, because Speaker has asked me to say a few words on it, I'm saying everything is subject to the chair. Everything is subject to the direction given by the chair, and I am also subject to the direction given by the Honorable Speaker, sir. So with your permission, because you are given, I am going to have to answer this. No need to shout me down. No need to shout me down. It is on the call of the Honorable Speaker that I've gotten up to give some comments on this. Sir, Speaker, sir, आपके अनुमति से आपके बुलाने में मैं खड़े होकर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ. आज हालात इस हाउस में ऐसे नहीं होना चाहिए. मैं आपके प्रोटेक्शन चाह रही हूँ, मंत्री हो या मेंबर हो, आपके प्रोटेक्शन के अनुसार ही हम जाते हैं, आपके प्रोटेक्शन के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं. क्योंकि आपने बुलाया, I have to say a few things. Many of the points, sir, are very much a part of what the discussion could be on. And therefore, to object to the introduction, at the introduction stage itself, questions the legislative competence. And I don't think there is a question on the legislative competence of the government to bring this into this House. One. Second, sir, I take the example when I say there are points which honourable members have raised, which can be part of the discussion, such as Honourable Member N.K. Premchandran talking about commissions for LIC agents. Very much a part of what we are going to discuss. And in fact, let me even give one point already on that. Fixing commission for LIC agents is already a part of the regulator in the sense that he fixes the upper cap, and below which is what the agents are given to collect, not to go beyond it. Isn't it already with the IRDAI? So please, everything is subject to discussion. Everything under your guidance will go either into the record or not. Everything will, under your direction, be acceptable or not. And therefore, that is one point, sir. Second is, Honourable Member Selva Ganapathy, talking about welfare measure, insurance. Sir, it was, and let me say this, and I'm sure this is also going to have a lot of voice of protest. Common citizens' insurance, if anyone thought of it at a mass scale, it was Prime Minister Modi. Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana, where did it come from? Atal Pension Yojana, where did it come from? These are points, these are common people's insurance coverage being given at a very nominal premium, and that is given by Honorable Prime Minister. That is a scheme. All these are included. All these are included as a scheme by Honorable Prime Minister. And today they want to talk about welfare measure and insurance. Very welcome to talk. And I will say more about what Prime Minister Modi did because of financial inclusion. And that is the reason why in this country, during COVID also, we could give insurance coverage to people. So there are every one of them which are subject to the discussion of this bill rather than question the introduction itself. So with your permission, sir. शाम को जब इस पे चर्चा करेंगे डिटेल 4 बजे, जब डिटेल सारी बात पर चर्चा होगी, आज ही करेंगे. प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री विधेयक प्रस्तावित करें. आइटम नंबर 20, श्री शिवराज सिंह चौहान. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण
VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। श्री TR बालू जी। Sir, at the introduction stage itself, I oppose because Mahatma Gandhi once said, India lives in the villages. And he also dreamt that economic freedom should be given to the poorest of the poorer. Keeping in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPS period, he has brought a novel scheme, Manrega. Because of this, crores and crores of poorest of the poorer in the country have lived not only by receiving the remuneration, but also they have enjoyed up to 100 days. Now, they have, because of the reason it is in the name of Mahatma Gandhi ji, this government, because of hatredness, they are going to bring up new bill. This is very bad, and father of the nation is being ridiculed by this government. I oppose this in the interest of श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। एक मिनट लूँगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए,
वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों। सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं रोकना चाहता, लेकिन सदन नियमों प्रक्रिया से चलता है, नहीं तो फिर माननीय सदस्य सदन के बाहर कहेंगे कि हमें माननीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है और नियम 72 सब माननीय सदस्यों ने पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन नियम 72 के अंतर्गत विषयों पर ही अपनी बात को फोकस रखें। जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो आप अपनी विस्तृत चर्चा उस विषय पर कर सकते हैं।